एक तो मतलब एक बार तो पूरा एक साल मेरा बर्बाद हो गया थिंकिंग कि मतलब मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा. So, I'm talking about big hero. So I won't name, but yes. तो मेरा पूरा साल ही बर्बाद हो गया and that was a time जहाँ पे you go into depression कि अब क्या होगा, ये नहीं हो रहा है, इन्होंने मुझे बोला था, पूरा टाइम ऐसे बहुत बार हुआ है. When we went again as a challenger, Rahul and me. So he was the one, संभावना प्लीज तू अगर मेरी बहन है, you are my sister, तू छोड़ना नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है. All right, okay, I will ask her and मैं तेरे साथ हूँ. अब अंदर जाके आप बिल्कुल ही बदल जाओ. Like अगर मैं I am fighting with Dimpy for a reason, of course. तो राहुल बीच में उसको आके कह रहा है, oh she is not our class. इंडस्ट्री वाले मुझे चांस नहीं दे रहे. दो ना, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. आप चांस ही नहीं दे रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ. या फिर ऐसा, अब तो ये भी ट्रेंड आ गया ना कि इमीडिएटली जो लाइमलाइट में आया आप उसी को लेके काम करते हो. 4-5 काम उसी को लेकर मिलते हैं. इस बार बिग बॉस का जो सेविंग ग्रेस था वो राखी सावंत. तो कई बार वो ओवरबोर्ड भी चली जाती थी, कई बार उसने एंटरटेनमेंट बहुत दिया. तो जो सेविंग ग्रेस था वो एक्चुअली तो राखी ही थी. और कौन था? संभावना सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली स्टार्स टॉक पर. Thank you. I am speaking to you after a very long time, and so Yes. there are quite a few questions to ask Ready. you. Thank you so much for joining me at E-Times. Thank you so much. Thank you. My pleasure. तो पहले ये बताइए संभावना कि आप इतने दिन कहाँ हैं. मतलब we don't see you except of course on your social media. We don't see you much around on screen, neither on the big screen nor on the small screen. Some sporadic here and there. What's happening and what are you? You don't see me, but if you ask me, I'm very active on social media. So be it Twitter or Instagram or my own blogs, which I have it on my YouTube channel. So I'm very, very active there, and I've been making everyday vlogs, which is a bit difficult for both of us, me and my husband. But we still manage to, upload vlogs on a daily basis. Yeah, I told you you're active on social media, but what I don't see is on screen. I mean, neither on the small screen nor on the big screen. During this pandemic, the lockdown was almost getting over. I did a serial on Ant TV, which was Gudiya Hamari Sab Pe Bhari. So I did a cameo in that. That was a 15-20 days ka cameo. So also, the reason of not doing serials is the main reason, if you ask me, is the travel. Because normally whatever shoots have been happening is in Naigaon or Gujarat. The traveling is not a big problem, a bigger problem for me, because I can't leave my 3 kids behind. So I have 3 babies and I don't want to, and one of them is really old. So, I'm just not been able to leave him. Also my husband. I think the time is right to ask you right away, instead of asking you in the end, what's the plan for babies after marriage? Kids. ये सभी का क्वेश्चन होता है. Why it is कि बेबी होगा तो लाइफ का मतलब एंड यही है क्या पार्ट? Why? I mean, I'm enjoying my life and I have 3 babies, no? 4-legged babies है ना मेरे पास. We will, when the time comes and we have to plan, then we will plan. But I think this year, no, not this year at all, because I want to focus more on my work. If not travel का अगर बोला समझ में आ जाए, then I want to focus on my work, my dance. I want to come back with more of my dance videos, because people in the past have appreciated our dance videos, and अभी भी एक डाला था हमने which got many views on YouTube. So we want to do more of dance videos. We मतलब me and my husband both are good dancers, so we'll be looking at doing some kind of reality shows if it happens or we get offered. So before I move on to the Big Boss, the last years, whether you've seen or no, and the few previous other years, and of course yours very own, let me ask you, do you think the industry has given you your due, Sambhavna? No, not at all. Not at all. But then I think ये क्रिप करने से
तो कुछ भी नहीं मिलेगा कि इंडस्ट्री हैज नॉट गिवन मी. आई थिंक इट्स टाइम. टाइम हैज चेंज्ड एंड आई थिंक अगर आपको कैलिबर इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा है दिखाने का, so you have your own platform. So people know me from my YouTube channel. People know me inside out and I think अगर मेरा डांस इंडस्ट्री नहीं मतलब like being a dancer मुझे नहीं ज्यादा कुछ मिला, तो मैं अपने YouTube पे करूंगी. What about I will rather show my channel. तो आजकल प्लेटफॉर्म लोगों के पास है. ऐसा नहीं है कि मैं अब इंडस्ट्री के लिए ही वेट करूं, बिकॉज वो वेटिंग टाइम इज ओवर. अगर अभी भी कुछ मिलना है, मैं दोनों खुले हाथों से मैं तैयार हूँ. एंड इफ आई डोंट गेट, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल सिट एंड क्रिप कि अरे बाप रे ये नहीं मिला है मुझे, ये दे सकता था. बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल, बड़े बड़े लोग हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर्स और हीरोज जिन्होंने at times मुझे ये बोला कि या संभावना we'll work with you and we want to give you good work, but कुछ भी नहीं हुआ and I kept waiting. एक तो मतलब एक बार तो पूरा एक साल मेरा बर्बाद हो गया thinking कि मतलब मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा. So I'm talking about big hero, so I won't name, but yes, तो मेरा पूरा साल ही बर्बाद हो गया. And that was a time जहाँ पे you go into depression कि अब क्या होगा, ये नहीं हो रहा है, इन्होंने मुझे बोला था. पूरा टाइम ऐसे बहुत बार हुआ है. सो अभी ये टाइम आ गया है जहाँ पर क्रिप करना छोड़ दो. डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इधर से उधर थोड़ा बहुत एवरीबडी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन इन लाइफ. एंजाइटी ऑलरेडी कोविड ने इतना मारा है लोगों को. सो आई डोंट थिंक कि मुझे इस तरह के डिप्रेशन और चाहिए लाइफ में. So I want to ask you, in that period, did you not call up those heroes and ask, okay, you said I'm touching base again, and क्या हो रहा है उस project का? I am a person who will ask you once, I will try once, I will message you once, but after that उसके बाद मैं कभी कॉल नहीं करूंगी और मैसेज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हो. अगर किसी को आपको वाकई काम देना था या है, वो आपको देगा. I think one call or a message, people know me. One call or a message is more than enough. Sufficient. क्योंकि आपको otherwise ये लगने लग जाता है, एक तो आप अपनी नजरों में गिरने लग जाते हो, और दूसरे को लगता है कि यार क्या आप तो मतलब पीछे पड़ गए हो, चेपी हो गए हो. So मैं ये नहीं करती. I am talking about big heroes. Important to ask you, how does your husband take to the unpredictability of this profession? मेरे हस्बैंड का तो ऐसा रहा है कि सीरियल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियल्स जहाँ पर मेन लीड नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हो, उसको मतलब रात तक फाइनल हुआ है, सुबह साइन करना है हमें कॉन्ट्रैक्ट, एंड सुबह भी गेट टू नो कि देयर इज समबडी एल्स. सो उसके ऊपर वो इतना इजी लेता है ना मेन चीजों को कि ही इज लाइक मुझे अपना टैलेंट मैं खुद शो करूंगा. He is writing big projects, by the way, Vicky. So he is writing for the big makers. So I am, very proud of my husband, and he doesn't take life that serious जैसे मैं ले लेती हूँ. मतलब बहुत हो जाती हूँ. मतलब हम दोनों दिखने में बहुत अलग हैं. Like मैं बहुत थोड़ा सा chilled out zone की लगती हूँ. वो नहीं लगता है, लेकिन है otherwise. वो chilled out zone का है, but मैं थोड़ा सा seriously ले लेती हूँ लाइफ को. कि कई बार लगता है कि यार उम्र भी हो रही है, पता नहीं काम का क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. ये बहुत सारी चीजें बीइंग ह्यूमन आपको लगती है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं. तो ये सारी चीजें हम सबके साथ होती रहती हैं, और हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी godfather in the industry. There is nobody who supports us. There is no one. We don't know anybody in the industry. Neither we have any friends in the industry जो कि आपको काम दे सके. I'm talking about those friends जो कि आप एक ग्रुप बन जाता है ना आपका, वो वाला सर्कल जहाँ पे आपको काम मिलेगा. We don't have that circle, and we are not party people at all. तो वैसा वाला सोशलाइज हमारे साथ हो नहीं सकता. मैं 10 बजे के बाद मेरी घंटी बज जाती है, I have to sleep. तो मैं नहीं कर सकती हूँ. So अगर मिलना है काम तो तब भी I think मिलना, आपका टाइम आएगा तो मिलेगा. So you just have to keep waiting for the right time and do your bit. So Sambhavna, how tough does it become to maintain the cost of living? And if I can add, especially in a city like Mumbai.
it is very very difficult for everyone. It is not just me, but then if you ask me, if I was not seen on screen for the past many years, like I'm talking about, अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ों में मैं नहीं देखी हूँ, I was still doing a lot of stage shows. So stage shows is one thing which gives you instant and good money. So वो आपका मैंने अच्छा खासा बना के रखा हुआ है, and I was never a person जो कि बस खर्चती जाऊंगी. मैं खर्चती तब हूँ पैसा जब मुझे लगता है कि मेरे पास पीछे बहुत ज्यादा है, काफी पड़ा है, तब मैं खर्चा करूंगी. So मैंने पैसा जोड़ के भी रखा हुआ है for the rainy days. लेकिन as such rainy days मुझे कभी भी नहीं लगा, because even when I was not being seen on screen, I was always working in shows. So I was busy doing my shows, traveling, ये सब मैं करती रही हूँ. And आज का टाइम में तो you get brand endorsements and everything that you can earn from. So you said you're a chilled out person, and but some of your contestants, some of your colleagues from your Bigg Boss show, I don't think will agree to that. So I'm going over to some of the questions which arose during that time, and the first one was, it was said that you don't get along with people at all in the house. Now there are two kinds of people, Sambhavna. One is that who know that they can't get along with people. They stay separately all the time, as much as possible at least. They are in their own zone. They know they will, get ruffled, etc. Second set is that they are misunderstood. Which category do you belong to, and what exactly was happening in that show when you were unable to get along with people? तो एक तो मैं थोड़ा मुंह फट हूँ, इमीडिएटली मुंह पे बोल देना. a lot of people will not like it कि आप वो अपना गेम खेलने आया है, लेकिन मैं सच्चाई अगर मैं मुंह पे बोल दे रही हूँ तो not a lot of people will appreciate and like that. And secondly, मेरे साथ ना ये बहुत होता था कि लोगों को लगता था कि मैं झगड़ा कर रही हूँ या मैं जवाब दे रही हूँ, बट अगर आपको एडिटेड पार्ट दिखाया गया है, आपको आगे पीछे का रीजन नहीं दिखाया गया, तो ऑब्वियसली मैं झगड़ालू दिखूंगी. सो बिग बॉस दे डोंट हैव टाइम ना, दे हैव ओनली 1 hour टू शो. सो एक घंटे में वो आपकी लड़ाई दिखा देंगे, बट आगे पीछे के रीजन ज्यादा दिखाते नहीं है. एंड सेकेंडली मैं उस वाले मोड में बहुत जल्दी चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे ये लगता है कि ओ ये मेरे को गिराने की कोशिश कर रहा है, ओ ये मेरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है. तो इससे पहले कि ये मेरे को गिराए और मैं पूरे ही गर्त में गिर जाऊं, मैं एक होता है ना वो नेचर जहाँ पे आप अटैकिंग मोड में आ जाते हो, फिर तो वो वाले मोड में मैं जल्दी आ जाती थी बिग बॉस में. तो अदरवाइज इफ यू आस्क मी, मेरे अभी भी बिग बॉस के दोस्त अभी भी है, ऐसा नहीं है, उस सीजन के अभी भी आज भी दोस्त हैं मेरे. बट आपके साथ अब हर कोई आपका दोस्त हो, ये तो फिर आप गॉड ही होने चाहिए हो. इतना अच्छा ह्यूमन तो नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक को हर एक से इशू है. तो अगर मुझे उनसे इशू है तो उनको भी मुझसे इशू होंगे ना. So there was this Rahul Mahajan, of course, I mean everybody knows him. Oh God. Show, and you were very friendly with him, but it was being written and it was being said that you are defaming Dimpy, his wife. He was the one who wanted that. पता है क्या विकी, हमारे पब्लिक के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि अरे ऐसा कर दिया, क्योंकि वो तो ऑन कैमरा हो रहा था, लेकिन ऑफ कैमरा जब हम लोग एंटर कर रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सीजन 8 व्हेन वी वेंट अगेन एज अ चैलेंजर, राहुल एंड मी. सो ही वाज द वन, संभावना प्लीज तू अगर मेरी बहन है, यू आर माय सिस्टर, तू छोड़ना नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है. All right, okay, I will ask her, and मैं तेरे साथ हूँ. अब अंदर जाके आप बिल्कुल ही बदल जाओ. Like अगर मैं I am fighting with Dimpy for a reason, of course. तो राहुल बीच में उसको आके कह रहा है, oh she is not our class. Dimpy हट जाओ, ये तो बहुत ही बकवास औरत है, and let's not talk to her. अरे आप बाहर भी गेम खेल रहे थे, इसका मतलब आप अंदर भी गेम खेल रहे थे. So these type of people I don't like. So Rahul, I have been very good in season 2, but and after that Rahul का स्वयंवर happened and I went as a sister. मैंने परफॉर्म किया, शादी के टाइम पे थी, बहुत बार गई मैं उसमें. पर उसके बाद सीजन 8 में मुझे समझ में आया एक्चुअली, क्योंकि मुझे गेम खेलना नहीं आता है. I am not a person who will play games
कि अब यहाँ दिखना है तो ऐसा करना है, वहां पे मैं ऐसा करूंगी, मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो अब ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा लोग ऐसे ऐसे करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो राहुल ने जब ये किया मेरे साथ, आई वाज मतलब कहते ना हार्ट ब्रोकन कि राहुल ऐसे कैसे कर सकता है। सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड राहुल, एंड उसके बाद आई चोज कि nothing doing, I don't want to be friends with you. Second was that you and Raja Chaudhary, that infamous kiss. Oh no, there was no kiss. Come on, Vicky, तुम मीडिया में हो, तुम्हें कैसे नहीं इस चीज समझ में आ सकती कि हम लोग सिर्फ ऐसा आए और हम ऐसा करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एंड वी वर एक्चुअली, मतलब हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग कितने बड़े दुश्मन हैं, एंड हम लोग इनको जलाने के लिए, लोगों को, ये जो हमारे अंदर के घर वाले थे, नॉट पीपल, मैं तो भूल ही चुकी थी कैमरा, इनको जलाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो बाहर कैसे दिखाया है। बाहर आई तो दिखाया कि जिससे मैं सबसे ज्यादा, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज्यादा मैं नफरत करती हूँ, सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई हुई है, उसके साथ मेरी किस भी दिखाई है। कौन सी किस थी, वो जाके देखना दोबारा। Did you see any kiss happening? Like ऐसे ऐसे जो आप फिल्मों में दिखाते हो, तो there was no kiss, it never happened. Please, वो हो ही नहीं सकता था। We were एक दूसरे के जानी दुश्मन। वो आज तक है that I don't talk to him. तो बिग बॉस की लड़ाइयाँ बड़े लाइफ टाइम तक चलती हैं। Sambhavna, have you bumped into Raja and Rahul anywhere after the show? आफ्टर सीजन 8 राहुल मुझे कभी नहीं मिला, मतलब मैं भी नहीं मिली, एंड राजा, यस, ही डिड ट्राई टू टॉक थ्रू विंदु। तो विंदु इज अ डियर फ्रेंड, और राजा ने बात करने की कोशिश की, फिर मतलब अब क्या मैं बात करूं कि तू मेरा भाई है, क्या करूं मैं बात करके, क्या करूं? यू आर हैप्पी इन योर जोन, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ, मैं क्या करूं? So you told Bindu, I don't want to talk. आप यही कह सकते हो। No, and I don't want to be in touch. I'm very clear about this. I don't want to be in touch. तो नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लाना क्यों? वैसे ही इतना नेगेटिविटी बहुत समझाया होगा बिंदु ने, समझाने की कोशिश नहीं। बिंदु तो वो हर एक का दोस्त है, और बिंदु हमेशा ये होता है, जाने दे यार, कर ले दोस्ती, ये वो। एक बार राजा ने वॉइस नोट भेजा मुझे, वीडियो बना के भेजा, सो आई थिंक विच इज देयर ऑन ट्विटर आल्सो, कि सैमी सब भूल जाते हैं, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। ये राजा ने, that was the period when Bindu was trying. तो मैंने कहा ये आदमी कभी भी बदल जाता है, मुझे नहीं जाना इस जोन में। Otherwise, बिग बॉस के जो दोस्त हैं, आपके कई दोस्त रहते हैं, ऐसा नहीं है। And of course, Sambhavna, the big statement that you made that had you done the song Halkat Jawani, which Kareena that you would have, आपको काम नहीं, set the stage and all the stars are doing, you would have done it better. Do you still maintain that? Yes, of course, I'm a good dancer, and तो इंडस्ट्री वाले मुझे चांस नहीं दे रहे, दो ना, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आप चांस ही नहीं दे रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? या फिर ऐसा, अब तो ये भी ट्रेंड आ गया ना कि इमीडिएटली जो लाइमलाइट में आया, आप उसी को लेके काम करते हो, 4-5 काम उसी को लेकर मिलते हैं। सो मुझे मेरा ड्यू तो कभी मिला ही नहीं है। एज वी स्टार्टेड द डिस्कशन विद, मुझे तो मेरा ड्यू मिला ही नहीं। आप वही वाला क्वेश्चन मैं वहां पे चले जाता है कि कहाँ मिला है। मिल जाता हो तो मैं करके बताती। सो जहां पे भी मुझे मतलब ऐसा लगता था कि अब तो हो गया, आई एम डूइंग दिस सॉन्ग विद अ बिग स्टार, सडनली आई एम नॉट देयर, व्हाट टू डू, क्या करोगे? मैं कई बार रोई हूँ, मैं अविनाश के सामने कई बार रोई हूँ इस चीज पे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ ये चीज। व्हाइल आई एम टॉकिंग आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल अबाउट द सेम। You said you don't message, you don't call up people when they don't respond or the offer doesn't blossom further. But when you were supposed to do a song and just that morning or maybe one previous day you come to know that you're not doing it, at least उस वक्त तो आपने फोन किया होगा कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ। It is very clear that they don't want you. Simple. उस पे मैं और
आपको और गिराने के लिए फोन करूं किस लिए? मैं पता है लोगों को लगता है अरे आपको कॉल्स करने चाहिए, बहुत सारे कॉल्स करने चाहिए, लोग तो जब तक पीछे नहीं पड़ जाते तब तक आपको काम नहीं मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कॉल करो, एक मैसेज छोड़ो एंड उसके बाद रिवर्ट आता है तो आप अगला मैसेज करते हो, बट उसके बाद अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स अ पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। वो पहला आपको एक इज्जत देने के लिए उसने रिवर्ट किया है एंड उसके बाद he thinks that you are a nobody or not even worth talking to। तो वो काम क्या देंगे आपको? तो समझ में आ रहा है जो काम नहीं देगा तो उसके साथ मैं पीछे पड़ के क्या करूंगी? So they are not explaining, so you don't ask for an explanation. That's what you're saying. But I would probably still wonder that how can you rest without a closure? If you don't know the reason, there's no closure. I don't know the reason. I did a song in Welcome Back, and I did a song in that movie, and वो कब में replace होके the other girl came in और मुझे replace कर दिया गया. I didn't. They didn't even bother to tell me. मैं एक बैक डांसर की तरह उसमें आपको दिखूंगी विकी. If you see the song. क्या पूछूं? किससे पूछूं? They're big people. So the song was shot with you in the center, and then it was reshot with the other person, keeping portions of you where you go back. Yes. So मैं बैक में चली जाती हूँ, wherein आपको कहीं ना कहीं मैं सॉन्ग में नाचती हुई दिखूंगी, और क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं तो they will say, oh, संभावना is there. What is she doing? Why she did that? Nobody knows कि संभावना was the main. तो they are big leaders. किससे मैं बात करूं? Moving on to the other big bosses, especially the last one, which is being still talked about, Big Boss 14. Though, of course, it was nowhere, I thought, in content, in excitement compared to the previous 13 seasons. What did you think of it? So, last year, if you ask me, I didn't see Big Boss at all. So, the contestants, जब तक contestants थे उसमें, it was a very boring season, Vicky. But the moment इन्होंने वो जो बाद में कश्मीरा गई, राखी गई, अर्शी गई, and all of these people, then कैसे भी सही, लेकिन content शुरू हुआ बनना. अब एंटरटेनमेंट भी किसी भी तरीके, अब एंटरटेनमेंट को आप एंटरटेनमेंट ही कहोगे. इट स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ चीपनेस, बट फिर बाद में लोगों ने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, नहीं यार एंटरटेनमेंट है. और मैं आपको एक्चुअली बोलूंगी कि मैंने तब ज्यादा देखना शुरू किया जब ये लोग मतलब ज्यादा क्या मतलब देखना शुरू किया, सॉरी, जब ये लोग गए अंदर, राखी, कश्मीरा, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कश्मीरा, क्योंकि कश्मीरा इज अ फ्रेंड, कश्मीरा इज अ वेरी डियर फ्रेंड. तो कैश के लिए मैं देखना शुरू करी बिग बॉस कि अभी तू जा रही है, आई डोंट केयर कौन और जा रहा है नहीं जा रहा, बट आई विल सपोर्ट यू, आई विल वॉच इट फॉर यू. कैश तो निकल गई एक हफ्ते में और मुझे आदत पड़ गई देखने की. सो इस बार बिग बॉस का जो सेविंग ग्रेस था वो राखी सावंत. तो कई बार वो ओवरबोर्ड भी चली जाती थी, कई बार उसने एंटरटेनमेंट बहुत दिया. तो जो सेविंग ग्रेस था वो एक्चुअली तो राखी ही थी. और कौन था? उसने कितनी मेहनत की. इवन आर्शी नेगेटिव पॉजिटिव वो छोड़ देते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं. जो इस बार के सीजन, मतलब बाकी सीजन से आप कंपेयर मत करो, क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज वाला सीजन तो कमाल ही था. तो वैसे वाले का तो आप अब बिल्कुल ही मरे हुए सीजन की बात कर रहे हैं. वहां पे एंटर्स राखी सावंत, वहां पे एंटर्स आर्शी, a bit Rahul, but then all of them gave content. And फिर आपको because Big Boss के lovers बहुत हैं तो आप देखना चाहते हो. And राखी in a way, अगर मैं कहूंगी तो मैं honestly Big Boss की winner भी देखना चाहती थी राखी. But ये फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आपको जो एसएल वाले कंटेस्टेंट्स जो अंदर गए हैं वो भजिया तलने थोड़ी गए हैं. तल तो वो वही रहे थे, लेकिन राखी को एक्चुअली में होना चाहिए था मेरे हिसाब से. अगर मैं होती, मतलब क्या डिसीजन लेना है तो मेरा डिसीजन, एंड
a lot of people will agree to me कि राखी ने यार बहुत मेहनत करी अंदर जाके भी, अच्छा बुरा सब यार यो इंसान है और वो राखी है तो वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर देगी, लेकिन उसने कितनी मेहनत करी आप ये तो देखो, उसी ने भी तो मेहनत करी सबसे ज्यादा, उसने आर्शी ने बहुत मेहनत करी है, दोनों लड़कियों ने तो इक्वली इवन इनफैक्ट मैं जहां तक भी देखती रही, क्योंकि एंड तक फिर मैंने नहीं देखा, तो राखी के कारण, कश्मीरा के कारण मैं स्टार्ट हुई थी बिग बॉस देखना, फिर राखी के कारण मैं देखती रही, मुझे मजा आता था, और उसके बाद फिर मेरा छूट गया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। आप कह रहे हैं फॉर्मेट यही है कि जो बाद में गए हैं वो नहीं जीतेंगे, एज यू मेंशन्ड, but so then it was clear that the person who was staying right from the beginning will end up as a winner. Yeah, obviously, yeah, that is the format. लेकिन कहा तो ये जा रहा था ना कि जो लोग बाद में भी जा रहे हैं वो जीत सकते हैं। हाँ जी, सीजन 8 में हम भी गए थे एज अ चैलेंजर, हमें भी ये बोला था कि आप जीत सकते हो, wherein we all knew कि एक एक करके tell me, एक एक करके 5 लोग गए, इजाज, मी, राहुल, सना एंड महक। तो जब निकलना शुरू हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल विकी कि एक एक करके हम ही लोग निकल रहे हैं, मतलब पहले निकली, सबसे पहले निकला इजाज, फिर निकली सना, फिर निकली महक, फिर निकला राहुल, एंड लास्ट के एक दिन पहले, फिनाले के एक दिन पहले निकली मैं। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक ने किसी को भी पसंद नहीं किया? Okay, so you have become friends with Rakhi Sawant lately because, of course, you did the right thing to go to see her mom. But is this a new friendship which is developing? Rakhi and me were never friends, and we are not friends. लेकिन राखी अगर कोई कुछ अच्छा करता है और आपको लगता है कि कहीं किसी के लिए खड़ा भी होना चाहिए, तो why not? Rakhi's mother, because I met Rakhi's brother in between when she was inside the house. So तब मुझे उसने बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। So उसके बाद मैं ट्रैवलिंग के लिए बाहर चली गई, and meanwhile you know ये सब हुआ, फिनाले हुआ, and you know she came out and immediately ये खबर आई कि you know she's got cancer, because मैं बिग बॉस तो देख नहीं रही थी, but जब ये बोला तो immediately you know I went there, and आप ये बोलोगे ना कि राखी के साथ मेरी कोई अगर मेरी दोस्ती बहुत नहीं है कोई ऐसी, तो मेरी दुश्मनी भी नहीं है आज के टाइम पे। शी इज नॉट माय दुश्मन। आई एम द वन हु इज सेइंग कि राखी को बिग बॉस जीत लेना चाहिए था। तो अभी वो वाली स्टेज नहीं है ना जहाँ पे मैं अभी रंजिशें निकालूं कि राखी ने ऐसा किया था, राखी ने वैसा किया था, राखी हम लोग बहुत एक दूसरे के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स इन पास्ट दे चुके हैं। सो दैट इज पास्ट। अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम बात करूं तो आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द नहीं है लेके मैं बैठी हुई हूँ, एंड इवन इफ आई डिडंट गेट दैट यू नो सो कॉल्ड ड्यू जो कि मुझे देना चाहिए था, तो भी मैं अपनी जिंदगी में तो खुश हूँ ना। मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, खाने के वांदे नहीं है मेरे पास, तो किस बात की दुश्मनी में लेके बैठूंगी? सो राखी इज नॉट माय दुश्मन, एंड उसको अगर कभी भी लगता है, मुझे लगता है सामने से किसी को जरूरत है, वो अकेला है, आई विल ऑलवेज बी देयर। तो राखी की दुश्मनी वाली स्टेज से लेकर आज हम लोग कम से कम इस बात पे हैं कि हम लोग कहीं भी मिलेंगे, इट विल बी ऑन गुड टर्म्स। वो नहीं है मेरा प्रॉब्लम राखी के साथ आज की डेट में। So conclusion of the story is that Sambhavna cannot forgive Rahul and Raja. No. But she has forgiven Rakhi, or has patched up with her, or has understood her, and Patched she has up, understood also that perhaps Sambhavna was also wrong, you know, sometimes getting angry that time. But with Rahul and Raja, it's still a no. Yes. With Rakhi, see, I've never worked with Rakhi. You have to understand. शायद अगर मैं काम करी होती तो बहुत सारी अलग चीजें और हो जाती ना। तो हो सकता है फिर मैं राखी का भी नाम ले रही होती। I don't want to talk to her. But I have never worked with Rakhi. We have never worked together in a show. तो जो भी रही है, राखी ने कभी कोई स्टेटमेंट पास किया मेरे बारे में, या कुछ ऐसा मुझे पता लगा कि शो में से राखी ने ऐसा बोला है मेरे बारे में, या फिर मैंने जवाब दिया, ये हमेशा से वाया इंटरव्यूज ही होते रहे हैं, बम्बार्डिंग एक दूसरे पे। कभी उसने करी, कभी मैंने करी, बट इट वाज नेवर इन अ शो वेयर इन वे वी बोथ आर टुगेदर।
सो मेरा ऐसा वाला इतना प्रॉब्लम है नहीं मेरा राखी का. I must ask you as the concluding question, Sambhavna, that do you, in hindsight, regret doing Bigg Boss because it gave you a certain stamp, it gave you a certain image, and देखो, which people क्या know होता that है, okay, now Sambhavna झगड़ालू है, hot-tempered है. These are the some of the adjectives which went with you. अब आप ये अरे I regret doing Bigg Boss. Bigg Boss was something which gave me a name. मैं कर क्या रही थी उसके अलावा? इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स करके भी, लाइक 36 चाइना टाउन और जमीर और बड़े बड़े सॉन्ग्स लाइक बिग स्टार कास्ट फिल्म्स करके भी मेरा नाम नहीं हो रहा था, जो कि मेरा भोजपुरी फिल्मों से हो गया, डूइंग भोजपुरी सॉन्ग्स. एंड देन आई गॉट बिग बॉस. तो मैं दैट टाइम आई वाज प्रेइंग, अरे यार बिग बॉस मिल गया, वाह, ऐसा हो रहा था. तो यार किसी को नहीं मिलता, मुझे उस टाइम पे मिल गया. तो आज मैं ये बोलूं कि यार आई रिग्रेट डूइंग बिग बॉस, नो. आपकी लाइफ में कुछ जर्नीज लिखी होती हैं, तो वो जर्नी आप उसको उस पे रोना नहीं चाहिए. लाइक आई नेवर वांटेड टू डू भोजपुरी फिल्म्स, आई नेवर वांटेड टू डू, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड आई कांट कनेक्ट विद दीस पीपल, जो द मेकर्स ऑफ भोजपुरी मेकर्स. सो आई कांट कनेक्ट विद देम, आई कांट अंडरस्टैंड देम. लेकिन मैंने इतनी सारी कर ली भोजपुरी फिल्म. तो ये आपकी जर्नी लिखी होती है, तो कहीं ना कहीं आप घूम के जहाँ पे पहुंचना होता है, आई फील आप पहुंचते हो. कहाँ पे कब लिखा है मेरा, वहां पे भी पहुंचा. अगर पहुंचना ही है तो वी डोंट नो. सो हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं. गॉड इज देयर टू प्लान, यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू. तो उस चीज को छोड़ देते हैं. आई एम हैप्पी, आई एम ओके. And Sambhavna, I must thank you for joining me for this interview where you have spoken your mind. A big thank you to you from the entire team of E-Times here. Thank you so much, Vicky.